Hello guys, myself Dr. H. Khan, Professor of Mathematics. In our previous video, we discussed the basic concept of arithmetic progressions and some elementary questions on that. But in this video, I am going to discuss slightly advanced questions on arithmetic progression. Without wasting the time, I am sharing my screen so that you can get a perfect method to solve elementary questions, elementary to some advanced questions related to arithmetic progression. Okay, as you are aware that we have a formula to find out the nth term of the series. Okay, Tn is equal to a plus n minus 1 into d. In my previous video, we discussed some elementary questions on that. Now in today's video, I am taking elementary, some advanced questions. Means elementary to basic questions. Okay, as we are aware with the formula, an is equal to a plus n minus 1 into d. या तो आप an कहिए या फिर आप tn कहिए. tn का मतलब भी nth टर्म ही होता है और an का मीनिंग भी nth टर्म ही होता है. Okay, तो now I'm taking question number 1 here. Check whether minus 140. This question, I'm talking about this question. Check whether minus 140 is a term of the AP, and AP is 11, 8, 5, 2. So this is your given AP, and we want to check whether minus 140, that is 140, is a term of this AP or not. So how we will solve such questions? तो guys, ये मेथड सिंपल है, एक ही फॉर्मूला इसमें यूज होता है, उसी फॉर्मूले को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो व्हाट आर द बेसिक टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि सबसे पहले जो गिवन है ना वो आप सॉल्यूशन में लिखिएगा. तो वट एवर इज गिवन टू यू, गिवन एपी 11, 8, 5, 2. So what is the first term of this given series? So first term, we always represent first term by a. So first term a is equal to 11. And what is common difference? And common difference you know very well. The difference between two consecutive terms, that is a2 minus a1, where a2 is the second term and a1 is the first term. So that is 8. Second term, what is our second term? 8. And first term is 11. So 8 minus 11, that is minus 3. So now we have first term a 11, a is equal to 11, and common difference d is equal to minus 3. So let we assume that minus 140 be the nth term of this AP. इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है बिगिनर्स के लिए, कि बच्चों को ना यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है कि यार ये nth टर्म कैसे हो गया. nth टर्म का मतलब है कि हमसे हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि which term of the AP is minus 140, या फिर हमसे पूछा गया है कि माइनस 140 इज ए टर्म ऑफ द एपी. हमसे ये जानने की कोशिश की गई है कि जो 140 है माइनस का, ये इस एपी का टर्म होगा या नहीं होगा. तो हमारा ये एजम्पशन होता है, हम ये मान के चलते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि लेट माइनस 140 है आपका nth टर्म है. अब देखते हैं कि आगे आता है नहीं आता है, वो तो टाइम बताएगा. तो लेट माइनस 140 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी, राइट. तो एपी के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? वी हैव द फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d. कुछ बुक्स में आपको मिलेगा tn is equal to a plus n minus 1 into d. तो सिंबल की बात है, सिंबल कोई कुछ भी लेके बोल सकता है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. ओके,
सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी आपके पास आ गया। तो ए का वैल्यू क्या है बताइए, ए एन आपने क्या एज्यूम किया था, अभी तो आपने एज्यूम किया -140, तो -140 वी टेक एट द प्लेस ऑफ ए एन। तो ए एन इज इक्वल टू -140, दिस वन equal to a, value of a put here 11 plus n minus 1 into d how much, d equal to -3, so write down here -3. Now this is the simple calculation guys, जो आपने 9 10th 7 6 8th में एडिशन मल्टीप्लिकेशन वो सारी चीजें पढ़ी है, जो बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स होता है, बस केवल वही यहाँ पे यूज करना है कैलकुलेशन करने के लिए। तो वेरी सिंपल, -140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11 तो एज इट इज रहेगा ना, तो मल्टीप्लाई 3, तो माइनस यहाँ पर है बाहर, तो -3 मल्टीप्लाई बाई एन, -3n प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 3 आपका हो गया। तो फाइनली इट बिकम -140, 11 प्लस 3 हाउ मच, 11 प्लस 3 बिकम 14, तो 140 माइनस का ट्रांसफर दिस साइड, तो -154 हो जाएगा भाई। 11 प्लस 3 कितना हो गया, 14 हो गया ना। तो 14 को जब आप इधर से राइट से लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का बन जाएगा, और -140 पहले से, तो -140 -14 फाइनली कितना आ गया, -140 154, तो 154 इक्वल टू हो गया -3n, तो देन n इज इक्वल टू 154/3। तो n का जो वैल्यू निकल के आया है वो निकल के आया है 154/3। तो क्लियरली n इज नॉट एन इंटीजर, n एक इंटीजर नहीं है बट एक फ्रैक्शन है। n क्या आया, एक फ्रैक्शन आया, तो देयरफॉर -140 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। अगर यही n एक इंटीजर आ जाता, इंटीजर मींस ए कंप्लीट नंबर आता, मीन्स 3 आता, 4 आता, 5 आता, 10 आता, 11 आता, या कोई भी एक कंप्लीट नंबर आ जाता जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, तो तब ये इस एपी का टर्म हो जाता है। गॉट इट? क्योंकि ये 1 - 1 ये 154/3 एक इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि 140 - 140 विल नॉट बी द टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं, सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। अभी मैं एक ही फॉर्मूले पर थोड़ा 4-5 क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। फॉर्मूला एक ही होगा, इसी फॉर्मूले पर अभी आपको काम करना है, इसी फॉर्मूले से आपको सीखना है पहले। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, if the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, then which term of the AP is 0? ये क्वेश्चन आपके पास है। तो आपको गिवन क्या क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, किसी रफ पेज पर लिखे, जब आप वीडियो देखें तो एक रफ पेज साथ में लेके बैठे, कॉपी लेके बैठे, तो वहां आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो if the third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, then which term of the AP is 0? तो आपको रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है, आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा टर्म इस एपी का 0 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड, आपको एपी चाहिए, और एपी आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, एपी कैलकुलेट करने के लिए चाहिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, और क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो whatever is given, write on a rough page. Okay, for example here what is given to you, third term, third term given है और ninth term given है। look here, थर्ड टर्म को हम किससे नोटेट कर, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a3 से। a3 मींस थर्ड टर्म, a1 मींस फर्स्ट, a2 सेकंड टर्म, a1 is first term, a2 is second term, a3 is third term, a4 is fourth term, and so on। an क्या होता है, nth term means nवां टर्म। तो थर्ड टर्म a3 is equal to 4 is given, ninth term a9, ninth term a9 is equal to what is -8। ये डेटा आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके, नाउ हाउ यू कैलकुलेट, वी नो दैट द nth term of AP is वही फॉर्मूला जो जिस फॉर्मूले पर अभी हम काम कर रहे हैं, जिस फॉर्मूले पर क्वेश्चन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ उसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज होगा।
Okay, so we know that the nth term of the AP is an is equal to a plus n minus 1 into d. Got it? I think everybody knows that. So therefore a3 equal to क्या हो जाएगा? a plus 3 minus 1 into d. मैं यहाँ पर a3 ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे गिवन है, मुझे दिया गया है कि a3 का वैल्यू हाउ मच? 4. a3 की वैल्यू क्या है? 4 है. So that's why we are writing the formula a3 is equal to a plus 3 minus 1 into d, this one. So 3 minus 1 means 2. तो फाइनली a plus 2d. तो a plus 2d equal to 4. ओके, दिस इज योर इक्वेशन 1. इसको आप क्या एज्यूम करेंगे? इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे. नाउ सेकंड आपको क्या गिवन था? सेकेंडली आपको गिवन था कि नाइन्थ टर्म आपको गिवन था विच विल बी -8. ओके, तो सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला a9 is equal to a plus 9 minus 1 into d. वेरी सिंपल भाई. एन का वैल्यू 9 हो गया ना यहाँ पर. जैसे यहाँ पर a3 में एन का वैल्यू 3 हुआ था. क्यों? क्योंकि थर्ड टर्म की बात की थी उसने. सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन के प्लेस पर 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाइन्थ टर्म के बारे में. तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी आपका हो गया. अब a9 का वैल्यू आपको क्या गिवन है? a9 का वैल्यू आपको गिवन है -8. So put -8 at the place of a9. So -8 is equal to a plus 8 into d. 9 minus 1, 9 minus 1, 9 minus 1 become 8. So a plus 8 into d is equal to how much? -8. So now this become equation second. Now guys, you have two equations. Equation 1 and equation second. आपने फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट जूनियर क्लासेस में दो इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा होगा. होता है ना, दो इक्वेशन आपके पास होती हैं एक्स और वाई में. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4. हाउ वी इवेलुएट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? तो वहां पर क्या होता है? दो मेथड आपके पास होते हैं. एक मेथड तो होता है एलिमिनेशन का, और दूसरा मेथड आपका कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूशन का. तो यूज एनी वन ऑफ देम. अप्लाई वेदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. Okay, so simply I applied some elimination, very simple. So on substituting, on subtracting equation 1 from equation 2, equation 1 से equation 2 को आप subtract कीजिए. तो देखिएगा a से a कैंसिल हो जाता है. दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 1 ना. तो a से a क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर 6d आ जाएगा. 8d माइनस 2d इक्वल टू 6d हो गया. और इधर कितना हो गया? माइनस माइनस का 8 हो जाएगा, इधर माइनस का 4 हो जाएगा. इट बिकम -12. तो 6d इज इक्वल टू -12. तो d का वैल्यू कितना है? -2. सो d बिकम -2. नाउ यू नीड, व्हाट यू नीड? यू नीड द वैल्यू ऑफ a. तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा. d का वैल्यू -2, d इज इक्वल टू -2. सब्स्टिट्यूट इन एनी वन इक्वेशन, मतलब सब्स्टिट्यूट ईदर इन इक्वेशन नंबर 1 और इन इक्वेशन नंबर 2, whatever which equation, in which equation you want to put the value of d is equal to -2, you can put. So here I am substituting the value of d in equation 1. So we get 4 is equal to a plus 2 into -2. Simple. इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था आपका 4, मतलब 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d था, और d के प्लेस पर आपका क्या है? आपका d के प्लेस पर है -2. तो पुट है 4 इज इक्वल टू a -4 आपका हो गया. तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए. 4 प्लस 4 8 हो गया. a का वैल्यू क्या हो गया? 8 आपके पास आ गया. तो नाउ यू हैव वैल्यूज ऑफ a एंड d. आपके पास a का वैल्यू मींस फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी है, और d का वैल्यू मींस कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी है. तो नाउ व्हाट इज योर nth टर्म? योर nth टर्म इज tn और an. लेकिन आपसे जो पूछा गया है ना कि विच टर्म इज जीरो, तो let again you have to assume let nth term of this AP be 0. So write down the formula. An is equal to a plus n minus 1 into d. So 0 equal to 8, क्योंकि an मैंने यहाँ पर 0 क्यों लिखा है? We assumed that our nth term is 0. So if nth term is 0, then the value of an becomes 0. That's why I am writing here 0. So 0 is equal to a plus n minus 1 into d.
So value of a how much? Value of a is 8 plus n minus 1 into minus 2, d का वैल्यू minus 2. So 0 is equal to 8. सिंप्लीफाई कीजिए, minus 2n हो जाएगा, minus 2 into minus 1 it become plus 2. तो 0 इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2. सो 2n इक्वल टू 10 आपका हो गया, n इक्वल टू कितना हो गया 5 आपके पास हो जाएगा. तो इट मींस फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0. आप करके देख लीजिए. डू यू वांट टू चेक इट? अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि इसका फिफ्थ टर्म 0 होगा या नहीं होगा, देखिए वेरी सिंपल. मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ. सिंपली आप देखिएगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट थर्ड टर्म क्या है आपका 9 है, राइट. इसका थर्ड टर्म क्या है 9 है. सॉरी, थर्ड टर्म इसका 4 है और नाइन्थ टर्म क्या है -8 है. और डी क्या है इसका -2. तो थर्ड टर्म आपका कितना हो गया 4 आपका हो गया. तो इससे माइनस कीजिएगा, तो फोर्थ टर्म कितना होगा 3 माइनस 2. 3 माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा -1 इज द फोर्थ टर्म. तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 ऑब्वियसली हो जाएगा. तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस को आप इसको क्लैरिफाई भी कर सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा. तो भाई ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिंपल बेसिक टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन करना सीख सकते हैं. गाइस ये वीडियोस ना इस पर्पस के लिए बना रहा हूँ, सो दैट कि कभी कभी क्लासेस में ना आपको समझ नहीं आता है, तो वीडियो को आप जूम करके पॉज करके दो दो तीन तीन बार रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको मेथड में क्लैरिटी आएगी कि अच्छा इस तरीके से हमें सॉल्व करना है. अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा, जो क्वेश्चन नंबर मैंने 3 लिया ना, इसका टाइप थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अलग टाइप है. जैसे आपसे पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक में बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको सॉल्व कर पाना बच्चों के लिए. तो सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन है वही फंडा जो मैं हमेशा बताता हूँ. सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एपी जो गिवन है वो आप लिखेंगे. तो व्हाट इज गिवन? गिवन एपी इज 3, 15, 27, 39. जी आपको एपी गिवन है. फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू आपका 3 हो गया, राइट. और सिमिलरली कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा 15 माइनस 3, कितना आया 15 माइनस 3 12 आपका आएगा. अगेन 27 माइनस 15 भी 12 भी आएगा. तो डिफरेंस इज कॉमन, और वैसे भी एपी है तो ऑब्वियसली डिफरेंस क्या होगा, कॉमन ही होगा. ओके. तो नाउ यू हैव फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू आपके पास 3 आ गया, एंड कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या आया 12 आपके पास आ गया. अब again, you know the formula. We know that an is equal to a plus n minus 1 into d. Whatever is given, put here. आपको 54th टर्म क्या होगा वो आप देखिएगा. तो a 54 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी आपके पास हो गया, राइट. तो a 54 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास 3 प्लस 53 इंटू 12. 3 प्लस 53 इंटू 12 का मतलब 12 3 जा 36, और 12 5 जा 60 एंड 3 63. तो 639 is the value of 54th term. 639 किसका वैल्यू है, 54th टर्म का वैल्यू है. तो ये वाला पार्ट आपने करके सॉल्व करके एक साइड रख दिया. तो हम आगे देखते हैं. We have to find the term of this AP which is 132 more than A54. 132 मोर देन A54. तो A54 का वैल्यू क्या है आपका, A54 का वैल्यू आया 639. तो 639 में 132 जरा ऐड कीजिएगा. तो 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 हो गया, और 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, और 1 कैरी 7 हो गया, और 6 प्लस 1 7. तो दैट इज 7/7 टर्म आपको निकालना है. समझ आया ना, ऐसे टेक्निक छोटा सा हल्का सा टेक्निकल है यहाँ पर. हल्का सा छोटी सी टेक्निक आपको सीखना है कि वी हैव टू फाइंड द टर्म ऑफ दिस एपी विच इज 132 मोर देन A54. सो A54 का वैल्यू क्या था 639. तो इसमें 132 मोर है, इससे क्या है 132 मोर, इसका मतलब इसमें 132 आप ऐड कीजिए. तो ऐड करने पर क्या है 771. तो यू हैव टू बी ऑब्टेन the term which is 7771.
सो अगेन यूज द फॉर्मूला, आप एज्यूम कर लीजिए, लेट nth टर्म बी 771. सो ए एन इज इक्वल टू हाउ मच, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपका हो गया। तो 771 ए एन के प्लेस पे आ जाएगा, और ए का वैल्यू क्या होगा, 3 प्लस एन माइनस वन, और डी आपको पता ही है डी क्या है, 12 है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 771 इस 3 को इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, 768 आ जाएगा, n माइनस वन इंटू 12 हो जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल टू कितना, 768 डिवाइड बाई 12, इट बिकम 64। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 64, तो n इक्वल टू हाउ मच, 65। I hope you understood. Therefore, the 65th term is 132 more than the 54th term of the given AP. तो गाइस ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनकी टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। लेकिन ना इस वाली वीडियो में ना, मैंने लास्ट वीडियो जो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, उसमें मैंने बेसिक क्वेश्चंस, एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चंस को डिस्कस किया था एपी के बारे में। यहाँ पर हल्का सा टेक्निकल क्वेश्चन, एक छोटा सा लेकिन दोनों वीडियोज में मैंने फॉर्मूला एक ही यूज किया, ए प्लस मतलब टी एन या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब आप समझ पाए होंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आपको डील करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। इससे कि क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ओके, सॉल्यूशन क्या होगा, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज ग्रेटर देन 10 इज 12। क्योंकि ये यहाँ पर ग्रेटर देन 10 एंड 12, 12 ग्रेटर देन 10 मैंने क्यों लिया है, आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा जरा ठीक से। आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 से छोटा हम नहीं ले सकते। दैट्स व्हाई द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज ग्रेटर देन 10 इज 12। द नेक्स्ट मल्टीपल ऑब्वियसली विल बी 16। 4 में आप 12 में आप 4 ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 16 आएगा। अगेन जब 16 में आप 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। Therefore the series formed as, तो ये सीरीज एक तरीके से अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी। हाउ, जैसे 12, 16, 20 एंड 24, तो दिस बिकम एन अर्थमेटिक सीरीज। लेकिन हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो 250 तक आपको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं, ऑल दीज आर डिविजिबल बाय 4 एंड thus all these are terms of an AP with the first term as 12 and the common difference क्या होगा इसका, 4 होगा। when we divide 250 by 4 the remainder will be 2, करके देखिए यार, 250 को 4 से डिवाइड करके देखिए कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, 1 कैरी 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 कैरी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, when we divide 250 by 4 the remainder will be 2, therefore 250 minus 2 that is 248 is divisible by 4। आई थिंक ये टेक्निक सभी को समझ में आती होगी। द सीरीज इज एज फॉलोज, 12, 16, 20, 24, 248। लेट 248 बी द nth term of this AP। तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू a इक्वल टू 12 आपका हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 4 हो जाएगा, और an क्या हो जाएगा, 248। अगेन वी नो द फॉर्मूला, an is equal to a plus n minus 1 into d। So 248 is equal to 12 plus n minus 1 into d आपका हो गया, और d का वैल्यू क्या है, 4 है। तो फाइनली 236 by 4 equal to n minus 1, 39 equal to n minus 1, n equal to 60 आपका हो गया। Therefore there are the 60 multiples of 4 between 10 and 250। सो गाइस ये 3-4 क्वेश्चंस थे जिनको मैंने वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और मैथ से डरना नहीं है, बहुत आसान होता है अगर आपको समझ में आ जाए। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको नॉलेजेबल लगी हो, आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे आगे बढ़ना आसान रहेगा, और मैं आपके लिए हर टॉपिक पर, स्पेशली बिजनेस मैथ्स और
बीसीए मैथमेटिक्स के हर टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ इन फ्यूचर। ओके, तो अगर आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो मैं थोड़ा सा एक तरीके से मुझे अच्छा लगेगा और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।